سمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی، میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح جھارکھنڈ میں نماز کے لیے جا رہے ایک مسلم نوجوان پر حملہ کرنے کی خبریں آ رہی ہیں۔ کانپور کے بلاک آفس کے باہر ملازمین دھوپ سینکتے رہے، بکرا آفس میں گھس کر کے فائل لے کر کے بھاگ گیا۔ سوشل میڈیا کے ذریعے سے کیا خبریں پہنچتی ہیں ناظرین گرامی، دیکھیے اس ویڈیو کو بھی آپ۔ متھرا میں خودکشی کی دھمکی دینے والا چھیڑخانی کا ملزم بابا گرفتار کر لیا گیا ہے۔ آئیے اس نے کیا بیان جاری کیا ہے اس پر بھی بات ہوگی۔ تو اب سوالات آپ سے، طلباء سے، اسکول میں پڑھنے والوں سے ایسے بھی ہونے والے ہیں کہ فلاں ریاست میں جو مسلم کش فسادات ہوئے تھے وہ کس کے دور اقتدار میں ہوئے تھے وغیرہ، جس پر اس وقت جو ہے تنقید ہو رہی ہے۔ تو گجرات کے ساحل پر تیز ہوا اور طوفانی لہروں سے 10 افراد لاپتہ ہو چکے ہیں، کئی کشتیاں الٹ جانے کی خبریں آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ڈی سی ایم نے کیا بیان دیا ہے ایودھیا کے سلسلے میں، متھرا کے سلسلے میں، اور اس کے علاوہ یہ خبر آ رہی ہے کہ گوہاٹی یونیورسٹی میں NSUI کی تاریخی فتح ہوئی ہے، یعنی کہ بی جے پی کی جو تنظیم طلبہ تنظیم ہے ABVP، اس کا مکمل صفایا ہوا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آسام میں بھی بی جے پی جو ہے پوری طرح سے نیچے۔ یہ ساری چیزیں میں رکھوں گا ناظرین گرامی تفصیلات کے ساتھ۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے کر لیں، ہماری ان ویڈیوز کو دوستوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کو اس وقت کرنا کیا ہے، نیچے اس کی تفصیلات ہیں۔ ناظرین گرامی، لگاتار مختلف ریاستوں سے جو ویڈیوز آتی ہیں مار پیٹ کی، حملہ کرنے کی، اس میں اب کمی نہیں آ رہی ہے، لگاتار تیزی آتی جا رہی ہے۔ جھارکھنڈ کی یہ ویڈیو آپ اندازہ لگائیں اس میں کس قدر تشدد اپنایا گیا ہے ایک مسلم نوجوان پر۔ اس نے اس میں بیان دیا ہے کہ یہ مسجد سے لوٹ رہا تھا کہ ایک ہندوتوا گنڈوں کا جھتہ جس میں 5 سے 6 افراد شامل تھے، انہوں نے اچانک اس پر حملہ کر کے وہاں سے فرار ہو گئے۔ ناظرین گرامی، ابھی تک یہ ویڈیو بڑے پیمانے پر وائرل نہیں ہوئی ہے۔ سیدھی بات کے ناظرین نے اس کو شیئر کیا ہے، مجھ سے پہنچایا ہے، اور اس کی مزید تفصیلات بھی نہیں پہنچائی ہیں، لیکن یہ جھارکھنڈ کی ہے اور تازہ کل کی ہی رپورٹ ہے جس میں اس نوجوان پر حملہ ہوا اور مسجد جانے کے دوران اس پر حملہ کیا گیا تھا۔ یہ حالات ہے ناظرین گرامی، ملک کے مختلف ریاستوں میں اس وقت ہندوتوا دہشت گرد اور گنڈے تن تناتے گھوم رہے ہیں اور حملے کر رہے ہیں مسلمانوں پر، اور حکومت ہے کہ خاموش بیٹھی ہوئی ہے۔ جب کہا جاتا ہے کہ یہاں کے لوگ اسلام فوبیا کا شکار ہو کر کے اس طرح کی جو ہے حالات بنا رہے ہیں، تب جو ہے حکومت کہتی ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ زمینی سطح پر جس انداز میں ایک نماز کو جانے والے پر حملہ ہوا ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ایک اور ویڈیو دیکھ کر کے لوٹتے ہیں کہ کس طرح سے آج کل کا سوشل میڈیا الگ الگ طرح کی ویڈیو سامنے لاتا ہے۔ یہ کانپور کا بتایا جا رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اب ٹھنڈ کا موسم چل رہا ہے، یہاں کی بلاک آفس کے سامنے وہاں کے ملازمین تھوڑا سا سورج جو نکلا تو دھوپ سینکنے کے لیے باہر آ بیٹھے، تو پھر بکری کی موج ہو گئی اور بکرا فائل لے کر کے بھاگ گیا، اور اس کے پیچھے ملازم کی بھاگتی ہوئی فائل کے لیے یہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے۔ کسی نے اس ویڈیو کو شیئر کرتے ہوئے یہ تبصرہ کیا کہ ہائے ہائے میرے، یہ NRC اور CAA کی فائل اور دستاویز لے کر کے بکرا بھاگ رہا ہے۔ تو ناظرین گرامی، بعض لوگوں کے لیے اس طرح کی ویڈیوز موج کا ذریعہ بنتی ہیں اور الگ الگ تبصروں کے ساتھ
हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाने की कोशिशें होती हैं। वो तबसरा मुझे अच्छा लगा कि हाय हाय मेरे CA NRC के दस्तावेज़ात लेकर भाग रहा है बकरा। बगैर नाज़रीन ग्रामी, सोशल मीडिया ने सब कुछ इस वक्त आसान बना दिया है कि अंदरूनी सतह की भी जो खबरें होती हैं वो बाहर आती हैं तो तबसरों की भरमार सोशल मीडिया में शुरू हो जाती है। आइए नाज़रीन ग्रामी, मैं आपको ले चलूँ उत्तर प्रदेश के मथुरा में। यहाँ एक खातून ने संत देव मुरारी बापू नाम के एक बाबा के खिलाफ छेड़खानी और जान से मारने की धमकी देने की रिपोर्ट दर्ज कराई और उसकी शक्ल ये है जो इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। इसके बाद बाबा ने खुदकुशी की धमकी दे डाली, ताहम पुलिस ने बाबा मुरारी को गिरफ्तार कर लिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये मामला मंगल के रोज उस वक्त पेश आया जब एक खातून ने इल्जाम आयद किया कि वो 3 अक्टूबर को स्कूटी पर अपने घर जा रही थी। खातून ने कहा कि जब वो देव मुरारी के घर के सामने पहुंची तो वहां बनाए गए स्पीड ब्रेकर पर गिर गई। जब उसने स्पीड ब्रेकर को गलत करार देते हुए लोगों को गिर जाने के बारे में बताया तो बाबा और देव मुरारी ने मुबैना तौर पर उसे गालियां देना शुरू कर दिया, उसे गलत तरीके से धक्का दिया। मुतासिरा लड़की का इल्जाम है कि किशोरपुरा के रहने वाले सौरभ गौतम गौरव गौतम पर उसके 35 लाख रुपए वाजिबुल अदा हैं। इस हवाले से अदालत में केस भी चल रहा है। कुछ दिन पहले देव मुरारी बापू सौरभ गौरव और दीगर 2 लोगों के साथ उसके घर पहुंचा, गाली गलौज करते हुए असलहा निकालकर मुकदमा वापस लेने की धमकी दी और 10 लाख रुपए का मुतालबा भी किया। मुतासिर लड़की का यह भी इल्जाम है कि 3 दिन पहले मुलजिम ने कार से उसका ताक़ुब किया था जिसमें मुतादिद लोग सवार थे। मुतासिरा ने इल्ज़ाम आयद किया कि मुलजिम ने उसे एक बार फिर से जान से मारने की धमकी दी। इस सिलसिले में उसने कोतवाली में संत देव मुरारी बापू गौरव सौरभ और 2 दीगर अफराद के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया। कोतवाली इंचार्ज अजय कौशल ने बताया कि खातून की शिकायत पर मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी है। SSP डॉक्टर गौरव गुरुवर ने कहा कि शिकायत की बुनियाद पर कार्रवाई भी की जाएगी। दरअसल बुध के रोज देव मुरारी बापू ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि उसका खातून से कोई झगड़ा नहीं और ना ही उसका खातून के साथ किसी तरह के लेन देन का मामला है। बाबा ने यह भी कहा उसने ना तो खातून को कोई धमकी दी और ना ही गाली दी है। नाज़रीन, दरअसल बाबा ने इल्ज़ाम यहाँ पर लगा दिया कि दरअसल ये है कि मैं हिंदुत्व के लिए काम कर रहा हूँ और कुछ लोग मुझे रोकना चाहते हैं। पुलिस 6 दिसंबर को श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह की पदयात्रा को कमज़ोर करना चाहती है। ये मेरे खिलाफ एक बड़ी साजिश है। बाबा ने वीडियो में धमकी दी कि वो दोपहर 2 बजे खुदकुशी कर लेगा, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। देखिए नाज़रीन गिरामी, किस चीज़ को किस तरह से भावनाओं के साथ एहसासात के साथ खेलने की कोशिश करता है। लड़की को तकलीफ दे रहे हैं, सब कुछ होने के बाद ये मामला जो है अब शाही ईदगाह की पदयात्रा से जोड़ दिया इस बाबा ने, ताकि लोगों के साथ जो है पूरी तरह से उनकी हमदर्दी हासिल करे। एक तो धमकी दे रहा है, लड़की का पीछा कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, उसको दबाने के लिए कह रहा है कि 6 दिसंबर को श्री कृष्ण जन्मभूमि, आपको मालूम होना चाहिए कि धमकी दी गई यहाँ की कुछ तंजीमों की जानिब से कि वो यहाँ पर शाही ईदगाह में जाकर के कृष्ण की मूर्ति रखेंगे वगैरह वगैरह। तो शाही ईदगाह की पदयात्रा को कमज़ोर करना चाहते कहते हुए अपने ज़ाती गलतियों को जो है यहाँ पर डाल करके मुसलमानों पर उसका ठेकरा फोड़ने की कोशिश कर रहा है ये ढोंगी बाबा। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, ये भारत है और यहाँ इसी तरह भावनाओं के साथ खेला जाता है, वो चाहे हिंदुओं के हो या मुसलमानों के हो या दीगर धर्मों के साथ हो। आइए नाज़रीन गिरामी, मैं आपको ले चलूँ गुजरात। CBSE की 12वीं जमात के समाजियात सोशियोलॉजी के इम्तिहान में बुध के रोज तलबा से उस पार्टी का नाम बताने को कहा गया जिसके दौर में साल 2002 में गुजरात में मुस्लिम मुखालिफ तशद्दुद हुआ था, यानी मुनज़्ज़म तौर पर मुसलमानों के कत्लेआम हुआ था। इस सवाल पर तनाज़ा पैदा होने के बाद CBSE ने इस सवाल को नामुनासिब और उसकी रहनुमा हिदायत के खिलाफ करार दिया। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE ने कहा कि इस मामले में जिम्मेदार अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। CBSE की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर जारी किए गए बयान में कहा गया कि बुध के रोज 12वीं जमात के सोशियोलॉजी के टर्म 1 के इम्तिहान में एक सवाल पूछा गया जो कि नामुनासिब है और सवालिया पर्चों की तैयारी के सिलसिले में बैरूनी मज़ामीन के माहिरीन के लिए CBSE की रहनुमा हिदायत की खिलाफ वर्जी है। CBSE इस गलती का इतराफ़ करता है और जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वह नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगाए सवालात में अगर मुस्लिम मुखालिफ फसादात हो किसी भी फसादात के सिलसिले में अगर सवाल होता है और उस दौर के पार्टी के बारे में बातें होती हैं तो जाहिर सी बात है कि मामला सियासी बन जाता है और सियासी जब मामला बन जाता है तो उस पर तनकीद शुरू होती है और एक दूसरे पार्टियों की खींचातानी भी शुरू हो जाती है। नाज़रीन गिरामी, आइए गुजरात ही से आज एक बहुत ही अफसोसनाक खबर आई और वो ये है कि गुजरात के समंदरी साहिली इलाके के जिलागढ़ सोमनाथ के नवा बंदर के करीब यानी नवा बंदरगाह के करीब
खराब मौसम के दरमियान अचानक तेज हवा और तूफानी लहरों की वजह से समंदर में 1 दर्जन से ज्यादा कश्तियां उलट चुकी हैं जो माहीगीरी में थी और या लौट रही थी माहीगीरी करके, जिनमें सवार 10 से ज्यादा अफराद के डूबने का अंदेशा बताया जा रहा है। नवाबंदर पुलिस स्टेशन ने तस्दीक की कि कम से कम 5 कश्तियां तो डूबी हैं और 8 माहीगीर लापता हैं। यूएनआई को मौसूला सरकारी इत्तलात के मुताबिक बहरे अरब में तेज हवाओं और ऊंची लहरों की वजह से नवाबंदर जेट्टी पर बंदी कम से कम 5 कश्तियां रात 11 बजे से 3 बजे के दरमियान डूब चुकी हैं और इसमें सवार 8 अफराद लापता हैं और उनको ढूंढने का काम भी चल रहा है। ये कश्तियां मछली पकड़ने के लिए समंदर में मौजूद थी, माहीगीरी जारी थी कि इसी दरमियान में ये हालात पैदा हुए हैं। 6 कश्तियां समंदर में बह गई और 8 माहीगीर लापता है, उनकी ढूंढने की पूरी तरह कोशिश हो रही है। ये जो है तफसीलात यहाँ फराहम करने की कोशिश हुई है। तो नाज़रीन गिरामी, चूँकि इस वक्त जो है समंदर में गहराई में तूफ़ानी लहरें उठने की बातें आ रही हैं, तो साहिल समंदर पे मौजूद अफराद को अलर्ट होना चाहिए और बचे रहना चाहिए। नाज़रीन गिरामी, किस तरह से उत्तर प्रदेश के नायब वज़ीर आला केशव मौर्य ने एक मरतबा फिर ट्वीट करते हुए अयोध्या में मंदिर का निर्माण जारी है और अब मथुरा की तैयारी है कहते हुए एक ऐसे ओहदे पर फाइज होकर जहां पर वो तमाम धर्मों की बात करते हैं, तमाम धर्मों के लीडर या ओहदे पर फाइज होते हैं, वहां पर इस तरह के बयान जारी करते हुए किस तरह एक बार फिर तनाज़े का शिकार हुए हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। जहाँ इनको तो आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश असम्बली इंतखाबात से कबल नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य इस तरह ट्वीट करके जो है अपनी ज़मीनी सतह की जो नाकामियाँ हैं उसको पूरी तरह से मंदिर और मस्जिद में एक बार फिर बहाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि अयोध्या काशी अज़ीमुशान मंदिर की तामीर जारी है, अब मथुरा के लिए तैयारी जारी है। इसके बाद कई क़ियास आरायाँ शुरू हो गई। अयोध्या में राम मंदिर की तामीर शुरू होने के बाद से मथुरा जन्मभूमि का वाक़या जोर पकड़ रहा है। पिछले साल राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के रुकन वासुदेवानंद सरस्वती ने भी कहा था कि पहले राम जन्मभूमि पर मंदिर बनाया जाएगा। राम मंदिर की तामीर के बाद काशी विश्वनाथ और मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि को आज़ाद कराया जाएगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। यूपी में असम्बली इंतखाबात में कुछ वक्त बाकी है, वहीं बीजेपी लीडरान अब अपने मखसूस एजेंडे और प्रोपेगेंडे हिंदुत्व को मजीद मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं और उसका आगाज़ ट्वीट के ज़रिए से, बयानबाजियों के ज़रिए से जारी है। और एक रियासत का नायब वज़ीर आला इस तरह का बयान और ट्वीट करता है तो आप सोचिए कि हिंदुत्व की जड़ें मजबूत करने के लिए किस कदर मजबूत कोशिशें हो रही हैं। नाज़रीन गिरामी, कांग्रेस की तलबा यूनिट NSUI ने गुवाहाटी यूनिवर्सिटी के PGSU इलेक्शन में तारीखी कामयाबी हासिल की है और बीजेपी को, यानी बीजेपी की जो तलबा तंजीम है ABVP को मुकम्मल तौर पर नाकामी हुई है, उसका सफाया हुआ है। NSUI ने अपने ट्विटर हैंडल से इतला दी है कि जनरल सेक्रेटरी और असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी समेत 5 अहम सीटों पर NSUI उम्मीदवार फतेहाब हुए। दिलचस्प बात यह है कि ABVP उम्मीदवारों को एक भी सीट पर कामयाबी हासिल नहीं हुई और यहाँ उनका मुकम्मल सफाया हो चुका है। इस जीत पर NSU ने कहा कि तलबा बीजेपी की किसी गलती को माफ़ नहीं करेंगे। तलबा ने आसाम के वज़ीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा के किले में घुसकर बीजेपी को शिकस्त फाश दी है। तलबा तंजीम के इम्तिहान में जनरल सेक्रेटरी ओहदे पर विकी शर्मा, असिस्टेंट सेक्रेटरी के ओहदे पर रश्मि कालिता, सोशल सेक्रेटरी ओहदे पर बेशोब मेढ़ी, गेम सेक्रेटरी ओहदे पर गणेश बड़ुआ और लिटरेली सेक्रेटरी के ओहदे पर ज्ञाना प्रतिम देव ने फतह हासिल की है। बहरकब नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम है कि आसाम में इस वक्त क्या हो रहा था और क्या हो रहा है। मुसलमान के खिलाफ बीजेपी आने के बाद जो जुल्म सितम हुआ, जिस तरह की बयानबाजियाँ हैं, CA NRC का मामला किस कदर आगे बढ़ा हुआ है, तमाम चीज़ों के बीच में इस तरह से जहाँ बीजेपी की हुकूमत चल रही हो, वहाँ पर यहाँ की इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में कांग्रेस की तलबा तंजीम को जीत हासिल होना और बीजेपी की तलबा तंजीम को एक भी सीट ना मिलना, ये बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर और आइंदा आसाम में किस तरह का रुख पैदा हो सकता है उस जानिब देखने की कोशिशें हो रही हैं। नाज़रीन गिरामी, इस साल बल्कि इस सेशन में सहाफ़ियों को लोकसभा और राज्यसभा और पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल के अंदर मीडिया गैलरियों तक रसाई नहीं दी गई है, यानी इजाज़त नहीं दी गई जहां पर मीडिया तमाम न्यूज़ कवरेज करता है। इन्हें हफ्ते में 2 दिन इहाते में रहने की इजाज़त है, लेकिन कार्रवाई से दूर। 27 नवंबर को तमाम सियासी जमातों के नाम एक खुले खत में सहाफ़ियों ने निशानदेही की थी कि वबाए अमराज के उरूज पर बाज़ारों, सिनेमाघरों, रेस्तरां और दीगर अवामी मकामात पर आयद पाबंदियाँ हटा दी गई, लेकिन पार्लियामेंट में रिपोर्टिंग पर पाबंदियाँ बरकरार हैं।
पार्लियामेंट की कार्रवाई की कवरेज के लिए मीडिया के दाखिले पर पाबंदी लगाने के नरेंद्र मोदी हुकूमत के इक़दाम के खिलाफ एहतजाज करने वाले सहाफ़ी, जिसके बारे में बहुत से लोगों का ख्याल है कि खबरों को सेंसर करने और शहरियों तक मालूमात के बहाव को रोकने की चाल है, अपोजिशन रहनुमाओं के खुले खत के बाद मार्च का मंसूबा बना रहे हैं। मोदी हुकूमत जो बगैर किसी बहस या बहस के बिलों को आगे बढ़ा रही है, उसने 1 साल से ज़्यादा अरसे से पार्लियामेंट में मीडिया के दाखिले को मुनज़्ज़म करने के लिए कोविड-19 के वबा का हवाला दिया है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के सदर अमाकांत लखेड़ा खत पर दस्तखत करने वालों में से एक ने टेलीग्राफ को बताया कि हम कुछ अरसे से पाबंदियों को समझ सकते हैं, जब कोविड का खतरा हर चीज़ को परेशान कर रहा था, लेकिन अब आप लोगों को बाजारों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हंसते हुए देख सकते हैं। मॉल्स खुले हैं, लेकिन मीडिया के दाखिले पर पार्लियामेंट में सख्त पाबंदी है। उन्होंने सहाफ़ियों को हफ्ते में बमुश्किल 2 बार इजाज़त देने के लिए लॉटरी का निज़ाम अपनाया। सहाफ़ी कार्रवाई नहीं देख सकते, अरकान पार्लियामेंट से नहीं मिल सकते। मीडिया को पार्लियामेंट से दूर रखने के लिए एक ऐसा डिज़ाइन है और ये मुकम्मल तौर पर साजिश है और अपनी नाकामियों को छुपाना चाहती है मरकज़ी हुकूमत बीजेपी, कहते हुए जो है इस वक्त सहाफ़ी और दीगर पार्टियों के नुमाइंदे भी बहुत ज़्यादा नाराज़ नज़र आ रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, बहरे कैरिबियन के जज़ायर टरकास और काइकोस की तरफ जाती नकल मकानों से भरी 2 कश्तियाँ एक दूसरे से टकरा चुकी हैं और ये बहुत ही अफसोसनाक खबर आ रही है कैरिबियन से। हादसे में 7 अफराद डूब करके हलाक हो चुके हैं। मकामी ज़राए अबलाग के मुताबिक टरकास और काइकोस के मशरक़ में वाक़ जज़ीरे परवेडविंग क्लास के खुले समंदर में नकल मकानों से भरी 2 कश्तियाँ तेज़ी से एक दूसरे से टकराने के बाद उलट चुकी थी। हुकाम के मुताबिक समंदर में गिरने वाले 64 नकली मकानों में से अक्सरियत को बचाया गया, लेकिन 7 अफराद डूब करके हलाक हो गए। तलाश और बचाव की कार्रवाई जारी है और नकली मकानों का ताल्लुक हैटी से है। नाज़रीन गिरामी, इससे पहले भी मैंने कई अपने ज़रूरी और अहम तरीन प्रोग्राम में, बल्कि वीकली सीरी बात में भी, जो नकली मकान करने वाले मुहाजिरीन का जो बहरान है और पानी के तहम में जाकर के किस तरह उनकी जाने जाती हैं, सारी तफसीलात आपको रखी थी और इनका ताल्लुक़ किन ममालिक से होता है उसकी भी तफसीलात मैंने रखी हैं। बैकअप ये अब कैरिबियन से आ रही एक बहुत ही अफसोसनाक खबर है। नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहीं बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।